start? Good afternoon to all. Thank you all for joining us in today's webinar. Before proceeding with this webinar, I would like to request you all to follow some protocols for smooth conduct of this session. All the participants are requested to switch off their videos and mute themselves. Queries from the participants will be taken at the end of the question and answer session. You can drop your questions in the chat box during the session. Kindly fill the feedback form, the link for which will be shared in the chat box towards the end of the session. We request your cooperation in conducting the session smoothly. A very good afternoon to one and all present here. I, Anshika Kathuria, member of the student body of the placement cell, welcomes you all to this webinar on the topic How to Do Well in Aptitude Test, organized by the placement cell Shivaji College, University of Delhi in collaboration with Time. I again thank you all for joining us in today's session. Do you look yourself seated in top management institutes? Do you want to turn your goal into reality? Are you aiming to enter into top management institutes like IIM? You have to undergo various stages for it. So, to help you step forward in this battle of entering into top management institutes, we are here with the webinar through which you will get to know how to do well in aptitude tests. We will now help you score well in your aptitude test as well, so that you may pass the first step towards the dream at ease. The principal of Shivaji College, Dr. Shivkumar Sehdev, is a driving force of our college. He has always made sure that we perform our best, not only in our academics, but while regulating our co-curricular activities as well. Due to some prior arrangements, he won't be able to join us today. Moving forward. Now it's time to invite the person without whose support and guidance the webinar would not have been possible. I am talking about Dr. Jayati Thakur ma'am, the convener of Placement Cell. Ma'am, I humbly request you to kindly address the gathering. Thank you, Anshika. Very good afternoon to all and a warm welcome to our speaker of the day, Mr. Nihar Kumar, and all our dear students. I would like to thank our principal, sir, though he could not be here due to some prior engagements, but I'd like to thank him for his constant support and inspiration, though like we are always looking up to him to conduct the various activities which are done in the department or in the college. In spite of the lockdown mode, we are fully operational thanks to his leadership. And I would also like to thank the organizing members, the students and the faculty members whose hard work has made this possible. Now, I myself am quite interested in the talk Mr. Nihar is going to give as to how the aptitude test can be cracked, because I come from a science background. So till now, what I understood by aptitude test was more of how to find out which field suits you. So actually, this was an interesting thing for me. Okay, this is also another way what aptitude test means. So I'm really keen on this, and I would now like to hand over the session back to Anshika. To you. Thank you, ma'am, for your kind words. Now, I would like to take this opportunity to introduce to the speaker of the day, Mr. Nihar Kumar. He is an MBA from IIM Rohtak, who has completed his graduation in mathematics honors from Hansraj College. He is an expert in preparing students for GD and PI and has guided them for their campus recruitment. Mr. Kumar has more than 13 years of experience in teaching and education industry and 3 years of corporate experience in sales and marketing. So we are honored to have among us Mr. Nihar Kumar, an expertise in preparing students to get into top management institutes as the speaker of the day. We welcome you, sir. Without much ado, I request you, sir, to kindly start this session. Okay, thank you so much, Anshika, for that warm welcome. So, good afternoon, everyone. Let me share my presentation with you, then we'll get started. One request quickly, everybody, I request everybody to get a piece of pen and a paper.
because what we are going to discuss today is questions and how to solve questions. Okay, because when we talk about aptitude test, तो एप्टीट्यूड टेस्ट बिना क्वेश्चन के समझना बड़ा मुश्किल होगा कि कैसे एप्टीट्यूड टेस्ट को हम अप्रोच करते हैं, एंड हाउ शुड बी आवर माइंडसेट बी व्हाइल सॉल्विंग questions in aptitude test, so that we are able to solve more questions, so that we are able to score more, and hence you will have better chances of selection. Fine. So please grab a piece of pen and a paper. Is everybody able to see my screen? Yeah, it's visible. Okay, fine. All right. So in aptitude test, and अभी जैसे अंशिका बात कर रही थी, and I guess a lot of people in today's session are thinking about writing your entrance test for MBA. So she was talking about your dreams of getting into IIMs. Now अगर आप MBA entrance test लिखना चाहते हैं, then you will have to write an aptitude test, and the mother of all those aptitude tests is known as CAT. I hope everybody is aware about that. So CAT is an aptitude test. Other than CAT, we have some more in MBA entrance exams like IAFT हो गया, ZAT हो गया, NMAT हो गया, SNAP हो गया. These are also other aptitude tests by writing which you can get into the top B schools in the country. Okay. लेकिन aptitude test सिर्फ B schools के admission के लिए conduct नहीं होता है. There are other avenues also or other opportunities also where entrance के लिए aptitude test is used. फॉर एग्जाम्पल बैंक पीओ में अगर आप जाता है, बैंकिंग इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, बैंक पीओ एज ए करियर ऑप्शन आप चूज करना चाहते हो, बैंक पीओ के एग्जाम्स में भी एप्टीट्यूड टेस्ट ही आता है. देन सपोज somebody is interested in getting into government job and you want to write एसएससी का एग्जाम. एसएससी का एग्जाम भी जो होता है वो एप्टीट्यूड टेस्ट ही होता है, राइट? सो in a lot of places or lot of avenues you will find aptitude test as a first chance of entry, in the sense that aptitude test पहले आप clear करते हो, and then of course if you are targeting B schools, IIMs, all those top class B schools in the country, then other than writing the test you also need to clear the second stage of selection process, which is group discussion and personal interview. Okay, so anyways, we are not talking about group discussion and personal interviews today. We are talking about two very important areas which are tested in these aptitude tests. One is quantitative aptitude, another one is logical reasoning. There is a third and a fourth area also जो आज के सेशन में we are not talking about. There is something known as DI, which is data interpretation, and there is something known as VA plus RC. When I say VA, it means verbal aptitude, and RC means reading comprehension. I'm not an expert in VARC, so I'm not going to touch upon this. Or DI altogether is a very different area, so we are not going to touch on this aspect today. एक घंटे के सेशन में सब कुछ कवर नहीं कर सकते हम. तो आज की क्लास में we'll focus on these two things: quantitative aptitude and logical reasoning. We'll understand first what is quantitative aptitude, what do we mean by logical reasoning, किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, हमारा तरीका क्या होगा क्वेश्चन सॉल्व करने का, या what should our thought process be, what should our approach be while solving problems in these exams. Okay, now whenever we talk about an aptitude, all right, aptitude क्या होता है basically? Any aptitude is knowledge of that area plus skills. अब उसके आगे आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लगाएंगे तो हो जाएगा नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स प्लस स्किल्स. क्वांटिटेटिव का मतलब यहाँ मैथमेटिक्स से हो गया. ओके, when you say quantitative aptitude, it is knowledge of mathematics plus skills. When you will say verbal aptitude, it will become knowledge of English plus skills. Okay, skill is something which is common to all aptitude. Okay, because skill is what is also being tested through these exams. तो इसलिए aptitude test इसलिए कहलाता है because other than your basic knowledge about mathematics, basic knowledge about English, they also want to check that you have those kind of skills or not, जो कि उस जॉब पे या उस करियर में जरूरी होंगी. जैसे आप MBA करना चाहते हैं, आप बिजनेस मैनेजर्स बनना चाहते हैं, बिजनेस लीडर्स बनना चाहते हैं, you need to possess a certain kind of skills, because those skills, without those skills, let's say, it is very difficult to survive in that environment, or it is very difficult to do those kind of roles or do those kind of jobs.
and that is why these skills are also being tested through exams, through the questions, through the exams. ये सारे skills भी test हो जाते हैं. Okay. Now everybody is quite aware that when we say aptitude test, any aptitude test, अगर आप कोई भी aptitude test उठा के देखेंगे, so हर aptitude test का एक hallmark है. hallmark क्या है कि you have more questions and less time. क्वेश्चन ज्यादा होते हैं हमेशा, टाइम कम होता है. Okay. That is virtually not possible to solve all the questions. So what we do is that we figure out which questions to do, which questions not to do, and because of these two aspects, more number of questions and less time, there is a very critical skill which is being tested, and that is time management skill. है ना, कि एक गिवन लिमिटेड टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा अगर क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा आपका स्कोर आएगा और ज्यादा से ज्यादा आपके चांसेस होंगे फिर सिलेक्शन के. तो टाइम मैनेजमेंट एक स्किल है जो कि चेक हो रहा है बिकॉज ऑफ द टाइम प्रेशर. यू हैव लिमिटेड टाइम एंड मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू सॉल्व. But there are some very important other skills also which are tested through the question. तो आपको लगेगा क्वेश्चन ही तो है, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है, what is the big deal about it? बट मैथमेटिक्स से क्वेश्चन तो है, लेकिन क्वेश्चन डिजाइन इस तरीके से किया गया है या क्वेश्चन का सिलेक्शन इस तरीके से किया गया है that they will be able to check some skills whether a candidate has or does not have. People who will have those skills will be able to pass through the exam. People who do not have those skills will not be able to pass through the exam. Now when I say you have the skill or you don't have the skill, don't take it in the wrong way कि जिसके पास स्किल नहीं है वो नहीं कर सकता. जिसके पास स्किल नहीं है उसको वो स्किल्स बिल्ड करने हैं. That's why you prepare for these exams, right? अगर आप प्रिपेयर नहीं करेंगे तो आप उन स्किल्स को डेवलप कैसे करेंगे? And that's why we are here for, to help people develop those kind of skills. First you need to know what are those skills which will be required. Okay, and then you will work on those skills कि ये सारे skills हम practice के थ्रू कैसे improve करेंगे. कोई भी स्किल इंप्रूव करने का क्या तरीका है? मोर एंड मोर प्रैक्टिस. द मोर प्रैक्टिस यू डू, द बेटर यू बिकम एट दो स्किल्स. ओके, सो वी विल टेक अप वेरियस क्वेश्चंस इन टुडेज सेशन एंड most of these questions that we'll discuss today, these are actual past year papers of CAT. past year questions हैं, actual questions हैं जो कभी ना कभी CAT में आए हुए हैं. तो उन questions को हम लोग pick करेंगे and we will see how to solve those questions. Okay. Now, most of these questions you will find easy in terms of कि मैथमेटिक्स कितना यूज होता है. कोई आपका ग्रेजुएशन लेवल का मैथमेटिक्स यूज नहीं हो रहा, कोई आपका 11th-12th का मैथमेटिक्स यूज नहीं हो रहा. 11th-12th का थोड़ा बहुत पोर्शन यूज होता है. सो कैट का या अदर एमबीए एंट्रेंस टेस्ट का जो 85% 85 to 90% ऑफ द सिलेबस है खास करके मैथमेटिक्स का, दैट इज टिल 10th लेवल मैथमेटिक्स आल्सो. 10th लेवल तक सबने मैथमेटिक्स पढ़ रखी है. 10% कुछ होता है, 10 से 15% का कुछ सिलेबस होगा जो कि 11th-12th के मैथमेटिक्स के सिलेबस से होता है. बट दोज आर आल्सो वेरी बेसिक थिंग्स. सो दे आर नॉट आस्किंग जो डेरिवेटिव्स क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, दोज थिंग्स आर नॉट आस्क्ड, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स, ये सब. तो जो हेवी टॉपिक्स आप पढ़ते हो 11th-12th के मैथमेटिक्स में वो सब नहीं पूछा जाता है. दे विल आस्क यू वेरी बेसिक स्टफ्स. और जिन्होंने 11th-12th में नहीं भी मैथ्स पढ़ा है उनको भी बहुत डरने की या बॉदर करने की जरूरत नहीं है. You can easily understand वही 3-4 टॉपिक्स जो हैं जो 11th-12th से आते हैं. Those are very easy basic topics. You can easily understand them, right? So let us jump into some questions, and through questions we will learn some skills which are tested on the exams, and why those skills are important. We'll understand that also. Okay. So I guess everybody has a pen and a paper. In some questions you may not need a pen and a paper. क्योंकि हम मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं तो इनवेरिएबली मैथमेटिक्स की बात होती है तो कुछ ना कुछ तो लिखना विखना पड़ता है, या जिसको हम पेंसिल पुशिंग कहते हैं. लिटिल बिट ऑफ पेंसिल पुशिंग इज रिक्वायर्ड. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी विल डिस्कस टुडे. ये क्वेश्चन है, आप आंसर निकाल के चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं. एंड since Anshika was the one who welcomed me, so I'll give that responsibility to her. Anshika, you be the volunteer and please tell me the answers that people are typing in the chat box, because screen sharing ke sath simultaneously I can't read the chats. Will you please do that? Okay, sir. Yeah, thanks. Great. So please try this question. आपको मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा खुद ट्राई करने के लिए भी, because unless you try it on your own, आप खुद नहीं ट्राई करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हम आगे जो बात करने वाले हैं कि क्या अप्रोच रखना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने टाइम पे, क्या क्या चीजें दिमाग में रहनी चाहिए.
It's a very easy question, nothing more than counting to do, है ना? It's basic simple counting. Do the counting, tell me the answer in the chat box. Any answer so far? There seems to be an issue with the chat thing. Just give us half a minute, yeah? Yeah, sure. Dere and Anshika, if the chat box for some reason is not getting enabled, maybe you can allow the mic on. Students can maybe answer. Is that okay, Mr. Nihar? Yes. Please. Yeah. You can unmute for a brief moment. You can tell me the answer and then you Yeah. mute yourself again. Yeah. Yeah, the mics have now been out. I think people have joined it through link, so they are not members to this. So let people Yeah, speak. so Sonal, Dr. Sonal is taken care of. So all the you have been allowed, your mic has been allowed. So you can raise your hands and Anshika, you can call out and they can answer. There are raised hands. Anshika, please address them. Yes, ma'am. Just a second. Their mics are not getting switched on. कोई बात नहीं, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक है, doesn't matter. The good thing is everybody is trying. Okay. Yeah, maybe they can at least put up their hands, which shows that I only want everybody to give it at least a try. क्योंकि आप try नहीं करेंगे तो आप appreciate नहीं कर पाएंगे जो बातें हम करने वाले. ठीक है, I'll tell you what happens whenever I try this question in a batch of students. I get a very common answer is 25. Okay, this is a very common answer. 25 is a very common answer, which is not correct, by the way. 25 गलत है, but surprisingly I get a lot of incorrect answers. Minimum being 25 and maximum being sometimes I also get an answer like 63.
तो 25 और 63 के रेंज में बहुत सारे आंसर्स आते हैं. So I get around at least 7, 8, 10 different wrong answers. Okay. 50. 54. Okay. 50. 50 is also not correct. So the 54. only 54. 54. 54 is also not correct. 44. 44 is also not correct. So you see how many different wrong answers you are getting. Okay. Any other answer? 27. 46. 27, 26, 34, 46. 46. 1. 1? No. ये 1 वाला आंसर मैंने पहली बार सुना है. 1 क्यों होगा भाई? 1 से 250 तो 2 तक टाइप करेंगे तो बहुत बार 4 यूज होगा. हाँ, 25 is not correct. 23, 22. हाँ, 22 भी है. 25 से छोटा आंसर भी आ रहा है. नहीं है. 52. Now that's the correct answer. अभी आया सही आंसर. Correct answer is 55. देखो मजेदार बात क्या है ना कि क्या ये क्वेश्चन इजी है? नहीं, क्वेश्चन इजी नहीं है. क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है. बोलोगे डिफिकल्ट क्या है? काउंट ही तो करना है. डिफिकल्ट इसलिए है कि मोस्ट ऑफ अस विल मेक द मिस्टेक and we'll get the wrong answer. Nothing bad about it. A lot of people do make mistake in these questions. That's okay. And the only mistake that we are doing is we are not counting carefully. If you are not counting carefully, you will make mistake and you will get wrong answers. Okay. अब देखो commonly कहाँ गलतियां होंगी. तो पहला trait क्या है सबसे important किसी भी अच्छे मैनेजर का? That you can't make small mistakes all the time. So you have to be very very careful. You have to be very very meticulous. और कॉर्पोरेट लिंगो में उसको कहते हैं आई फॉर डिटेल. यू शुड हैव एन आई फॉर डिटेल. छोटे छोटे डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में. इफ यू आर मिसिंग आउट ऑन दोज यू विल मेक बैड डिसीजंस और नॉट सो गुड डिसीजंस. नाउ वेयर आर यू मेकिंग मिस्टेक्स? लेट्स चेक. तो जिनका आंसर 25 आता है ना वो सबसे पहले तो यहाँ मिस करते हैं. आई एम काउंटिंग फ्रॉम 1 से लेके 100. ठीक है. 1 से लेके 100 में 4 पहली बार 4 लिखने में टाइप किया जाएगा. अगली बार 14 में, अगली बार 24 में, देन 34 में. उसके बाद लोग क्या करते हैं सीधा 44 पे जाते हैं, 54 पे जाते हैं, 64 पे जाते हैं एंड सो ऑन. और व्हाट दे फॉरगेट इज दिस 44 पे तो बाद में जाएंगे. पहले तो 40 पे 40 में 4 आएगा, 41 में भी 4 आएगा, 42 में भी 4 आएगा, 43 में भी 4 आएगा और 44 में इनफैक्ट 2 बार आएगा. जिनका आंसर 55 के आसपास है, 54 या 50 है, वो लोग यहाँ गलती कर जाते हैं कि 44 में एक्चुअली वी हैव टू काउंट ट्वाइस. देन 45 है, 46 है, 47 है, 48 है, 49 है. उसके बाद आएगा 54 में, 64 में, 74 में, 84 में, 94 में. आगे सिंपल है, आगे कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ बस ध्यान में रखना है कि यहाँ बहुत बार आएगा. इफ यू आर काउंटिंग फ्रॉम 1 से लेके 100, 4 कितनी बार यूज हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 times from 1 to 100. Then from 101 to 200 how many times? Still 20 times. Same, exactly the same. बस यहाँ 4 की जगह 104 हो जाएगा, 14 की जगह 114 हो जाएगा, 24 की जगह 124 हो जाएगा एंड सो ऑन. बट 201 से आई हैव टू ओनली गो टिल 252. 1 से 252 तक ही जाना है ना. तो अगर 252 तक जा रहे हैं इसका मतलब 254 वाला 4 काउंट नहीं होगा, 264 वाला काउंट नहीं होगा. मतलब ये नीचे के सारे 4s काउंट नहीं होंगे. तो नीचे कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5. ठीक. तो नीचे वाले 5 काउंट नहीं करोगे तो बाकी के बचेंगे ऊपर वाले 15. तो 201 से लेके 252 तक अगेन 15 टाइम्स. So 20 times plus 20 times plus 15 times. That's how you get 55 times. Okay. तो क्वेश्चंस इसलिए डिफिकल्ट नहीं होते हैं कि डिफिकल्ट टॉपिक से पूछा गया है. डिफरेंशिएशन पूछ लिया या इंटीग्रेशन पूछ लिया, ऐसा कुछ नहीं पूछ रहे हैं. They are asking very simple question. To be very honest, this question can be asked to a 5th class math student. पूछ सकते हैं कि नहीं? काउंटिंग ही तो करनी है. 5वीं क्लास के बच्चे को काउंटिंग तो आती है. लेकिन दिक्कत ये है कि आंसर वो सही करेगा कि नहीं, दैट्स द होल पॉइंट.
तो अगर हम ठीक से काउंट नहीं करें तो आंसर हम गलत करेंगे। क्वेश्चन वैसे सिंपल है कि काउंटिंग करनी है सब सिर्फ, लेकिन अदरवाइज ट्रिकी है। सो वी कैन कॉल इट अ ट्रिकी क्वेश्चन। इट विल नो tempt you to make mistakes. Fine. What is the important skill which is being tested? Eye for detail. So if you are not having eye for detail, you are liable to make small little mistakes which will hamper your chances of getting your decisions correct. Okay. तो इसके बारे में और डिटेल में हम बात करना चाहे तो कर सकते हैं, बट विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जब आप किसी भी बिजनेस स्कूल में जाएंगे ना, एंड मे बी आपके ग्रेजुएशन कॉलेज में भी यू मस्ट बी डूइंग सम केस स्टडीज, मे बी, आई डोंट नो। हमारे टाइम पे जब हम मैथ्स ऑनर्स कर रहे थे तो उस टाइम केस स्टडी नहीं पढ़ाया जाता था, एटलीस्ट ग्रेजुएशन के करिकुलम में। लेकिन बिजनेस स्कूल में आपको 85% to 90% ऑफ द सिलेबस केस स्टडी के थ्रू ही पढ़ाया जाएगा। और केस स्टडी के थ्रू पढ़ने का मतलब ये है कि यू आर एक्चुअली सॉल्विंग बिजनेस प्रॉब्लम्स इन द केस स्टडीज। And if you are solving business problems, then you have to be very, very careful about all the small little details which are given in the case. If you are missing out on details, you will not be able to solve the problem in a better manner. Fine. So इसलिए ये skills जरूरी हैं। ये टेस्ट करते हैं ताकि कैंडिडेट जब बी स्कूल में आए तो वो ठीक से परफॉर्म कर पाए, चैलेंजेस को वो टैकल कर पाए जो केस स्टडीज सॉल्विंग चैलेंजेस हैं। और लेटर ऑन जब कॉर्पोरेट लाइफ में जाएगा तो उसके लाइफ में जो भी, उसके करियर में जो भी चैलेंजेस आएंगे या उसके डे टू डे वर्क में जो भी चैलेंजेस आएंगी या डिसीजंस आएंगे लेने के लिए, वो अच्छे से ले पाएगा। फाइन, ऑलराइट, लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल। नाउ लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन। इसमें भी पिछले वाले क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन तो नहीं करनी थी, हमें काउंटिंग करनी थी, राइट? हम अगर ठीक से काउंटिंग करते तो हम उंगलियों पे भी काउंट कर सकते थे, हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही कुछ करना है। जस्ट हैव टू थिंक, you don't need any calculation, you just have to keep your mind open and think about it. ट्रिपलेट्स का मतलब होता है जब 3 नंबर्स होते हैं तो उसको ट्रिपलेट्स बोलते हैं। 2 नंबर्स होगा तो पेयर बोलेंगे। तो ऐसे इंटीजर सोचने हैं 3 जिसका सम और प्रोडक्ट इक्वल हो, तो उन तीनों का सम शुड बी इक्वल टू उन तीनों का प्रोडक्ट। One, two, three. 1 2 3, यस, करेक्ट। इसको हम एक ट्रिपलेट बोलेंगे, दिस इज 1 ट्रिपलेट। I'll give you the options. Options हैं क्वेश्चन के। एप्टीट्यूड टेस्ट जब भी आता है तो इट्स एन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, you will have options. कैट में you will find some questions which do not have options, उसमें आपको बॉक्स में टाइप करना होता है आंसर, but those are very few questions. Most of the questions will still have options. Let's say options are these: only 1 triplet, only 2 triplets, only 3 triplets. 0, 1, -1. Which one? 0, 1, -1. Yes. -1 0 -1. हाँ, और ऑर्डर में लिखेंगे 0, तो 1, पहले -1. ऐसे नहीं, -1 0 से छोटा होता है। यहाँ लिखा है a is less than b is less than c, -1 पहले। हाँ, -1 0, वही मतलब मैं 3 इंटीजर्स बता रहा हूँ। ठीक है। तो एक ट्रिपलेट ये हो गया, एक ट्रिपलेट ये हो गया, और भी कुछ है कि यही दोनों है? -3 -2 -1. एक्सक्यूज मी सर। यस सर, ये सेकंड ट्रिपलेट जो हमने मेंशन किया ये नहीं होगा ना, बिकॉज a इंटू बी इंटू सी तो जो प्रोडक्ट है वो 0 हो जाएगा ना।
हाँ तो कोई बात नहीं ना, a इंटू बी इंटू सी 0 हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी हाँ, तो 0 ही होगा ना। तो सर जैसे इसमें हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, लाइक 0 -1 1 ऐसा अलाउड है या नहीं है? नहीं है ना, इसकी वजह से अलाउड नहीं है ना, a शुड बी लेस देन b, b शुड बी लेस देन c। श्योर श्योर। तो सर हम जैसे -3 -2 एंड -1 हो सकता है, हम इसको बिल्कुल अगर बोल जैसे सकते हैं, वंडरफुल, यस। हाँ बिल्कुल नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते हैं। सम आएगा -6, प्रोडक्ट भी आएगा -6। वेरी गुड। -2 0 2। हाँ अब पॉइंट ये है ना कि जैसे ही किसी ने ये बोला ये होगा, तो ये होगा तो More फिर तो than बहुत 5। सारे होंगे, क्योंकि अगर ये होगा तो फिर ये क्यों नहीं हो सकता, फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सम करोगे तो 0 आएगा, प्रोडक्ट तो 0 आएगा ही, अगर एक नंबर 0 है तो प्रोडक्ट तो 0 आएगा ही। अगर ये होगा तो फिर ये भी होगा। तो काउंट नहीं कर पाएंगे ना, तो डिफाइन नहीं हाँ कर तो पाएंगे ना इसका आंसर। इसीलिए तो ये चौथा ऑप्शन है मोर देन 3, आंसर इज मोर देन 3, इनफैक्ट देयर आर इनफाइनाइट सच ट्रिपलेट्स, देयर आर इनफाइनाइट सच ट्रिपलेट्स and so on, you can go on like this. Okay, so this question does not require any calculation, you just have to keep your mind open and think। होता क्या है, सबसे पहले ये स्ट्राइक करता है, ये क्वेश्चन देने का एक खास पर्पस सिर्फ ये है, ये समझाना कि सबसे पहले ये स्ट्राइक करता है सबको, उसके बाद थोड़ा और सोचते हैं लोगों को बाकी चीजें भी स्ट्राइक करने लगती हैं, लेकिन सबसे पहले यही क्यों स्ट्राइक करता है, उसका रीजन ये है कि द मोमेंट यू रीड इंटीजर्स, यहाँ पे वर्ड लिखा है इंटीजर्स, लेकिन ये इंटीजर वाली बात पढ़ने के बाद भी ना दिमाग में जो चीज रजिस्टर होती है वो होती है नेचुरल नंबर्स। और उसका सिंपल सा रीजन ये है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, दीज आर द नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स जिनको बोलते हैं। नेचुरल नंबर उस टाइप के नंबर हैं जो हमारे एवरीडे लाइफ का पार्ट है। हम काउंटिंग वाउंटिंग करते हैं कोई सी चीजों की तो यूज करते रहते हैं, रुपए पैसे काउंट कर रहे हैं तो यूज करते हैं काउंटिंग के लिए। तो नेचुरल नंबर इज काइंड ऑफ अ पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ। तो द मोमेंट यू रीड इंटीजर्स ऑल्सो, द फर्स्ट थिंग दैट स्ट्राइक्स इज नेचुरल नंबर, तो सबसे पहले यही क्लिक करता है 1 2 3 1 होगा। लेकिन क्वेश्चन है इंटीजर्स, तो इंटीजर्स के बारे में आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि इंटीजर्स में तो यार 0 भी होता है, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स में तो ये सब कुछ आएगा, ये भी आएगा, -1 भी आएगा, -2 भी आएगा, -3 भी आएगा एंड सो ऑन। जब आपको ये चीज रियलाइज होती है कि इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, इसीलिए नेगेटिव पॉजिटिव 0 सबके बारे में सोच सकते हैं, देन ये सब चीजें भी स्ट्राइक करने लगती हैं। और एक बार अगर ये स्ट्राइक कर गया तब तो बहुत सारे होंगे, ये भी स्ट्राइक कर जाएगा। फिर ये अगर निगेटिव के बारे में सोचोगे तो ये भी स्ट्राइक करता है फिर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ सीखने की बात ये है इसमें कि जब भी आप मैनेजर बनते हैं या आप उस रोल में होंगे जहाँ पे आप टीम हैंडल कर रहे होंगे, आपका डिसीजन मेकिंग रोल होगा, यू कैन नॉट बी ब्लाइंडेड बाय योर बायसेस। बायस यहाँ पे क्या है कि क्योंकि नेचुरल नंबर हम आमतौर पे यूज करते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, तो सबसे पहले मुझे यही स्ट्राइक करता है, लेकिन वो मेरा बायस है। अगर मैं सिर्फ अपने बायस के बेसिस पे डिसीजन ले रहा हूँ तो मेरे डिसीजन शायद उतने अच्छे नहीं होंगे। बट इफ आई एम टेकिंग a whole lot of other perspective into account also, then my decisions are liable to be far better. Okay, so we should not be blinded by our biases, so we have to think more, we have to get out of our comfort zone and think more, right? all right, चलो आगे चलते हैं, let's try this question। ये क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं देखा होगा अगर आपने 11 12 में पढ़ रखा है मैथमेटिक्स। तो देयर इज अ टॉपिक इन 11 12 का सिलेबस, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 10th के सिलेबस में पढ़ते हैं हम लोग, और एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नाम की चीज होती है जिसको हम सीक्वेंस एंड सीरीज के टॉपिक में पढ़ते हैं। तो मैंने आपको हिंट भी दे दिया है, किसी को अगर रिकॉल होता है तो आप ट्राई कर सकते हो। ऑप्शंस आई एम जस्ट गोइंग टू राइट वंस अगेन इन केस यू आर कंफ्यूज कि ऑप्शन में क्या लिखा है। पहला ऑप्शन इज दिस 20/27 into 10 to the power n minus 1 minus 3n/4। ये क्वेश्चन भी पहले कैट में आया हुआ है और ऑप्शन के साथ आया था।
ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बिना ऑप्शन के आ ही नहीं सकता, क्योंकि इतना बड़ा ऑप्शन टाइप करने का फैसिलिटी नहीं होता है। टाइप आप सिर्फ नंबर्स कर सकते हो, ये फ्रैक्शन फ्रैक्शन टाइप नहीं कर सकते बॉक्स में। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन जरूर आते हैं। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, दैट इज करेक्ट। तो इसको सॉल्व करने का एक स्टैंडर्ड तरीका है जो 11th-12th के सिलेबस में हम लोग पढ़ते हैं। उस स्टैंडर्ड तरीके पे हम लोग नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन उस पे उसके लिए समझना पड़ेगा। तो क्वेश्चन वैसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का है, बट यू डोंट नीड टू अप्लाई व्हाट यू स्टडी इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन टू सॉल्व, एंड दैट इज व्हाई आई से कि इवन इफ सम टॉपिक्स आर टेकन फ्रॉम 11th-12th का सिलेबस, if you are street smart, you may not really need to use those methods. अब अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी कर सकते हैं। अब जिन्होंने 11th-12th में मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा और जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, वो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यू जस्ट नीड टू अप्लाई योर ब्रेन कि कैसे फटाफट सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो क्वेश्चन कहता है 6 + 6 66 + 666 ऐसे करके n टर्म्स अगर लिखें तो उसका सम क्या होगा, फाइंड द सम पूछा है। तो सिंस इट इज राइटिंग n टर्म्स, तो ऐसा मान लेते हैं कि लेट्स टेक n = 1। So when you take n = 1, what do you mean कि 6 + 66 + 666 कितने टर्म्स लिखने हैं? एक ही टर्म लिखना है, क्योंकि आप n को 1 ले रहे हो, और एक ही टर्म लिखोगे तो सिर्फ पहला टर्म ही लिखा जाएगा। तो अगर सीरीज में पूरा सिर्फ एक ही टर्म लिखा जाएगा तो सम क्या होगा? सम भी वही होगा, अगर एक ही टर्म है तो 6 होगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। इफ यू टेक n as 1, that means you are taking only one term of this series. If you are taking only one term of this series, it will be the first term, and the first term is 6. Therefore the sum is also 6, क्योंकि आप एक ही टर्म ले रहे हो, तो टर्म ही एक है तो सम भी 6 ही होगा। अब आपको क्या करना है, यही n = 1 डाल के ऑप्शंस में चेक करना है कि 6 कहाँ पे आता है। जिस ऑप्शन में 6 आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो पहले वाले में अगर मैं डाल के देखूं, और वो भी चेक करना भी आसान है, क्योंकि ये पार्ट एग्जैक्टली सेम है हर जगह, यहाँ से यहाँ तक हर ऑप्शन में सेम है। तो ये वाला पार्ट में कैलकुलेट करूं तो ये आएगा 20/27 × 10⁻n, मतलब 1, n को हम 1 ले रहे हैं, -1। ये वाला पार्ट जो है वो आएगा 20/27, इधर यू गेट 9, 9 3 जा 27, तो दिस पार्ट इज गोइंग टू बी 20/3 एवरीवेयर। ये भी 20/3 आएगा, ये भी 20/3 आएगा, ये भी 20/3 आएगा फॉर n = 1। अब इसमें से आप माइनस कर रहे हो 3n/4, सो 3 × 1/4, दैट इज 3/4, n को 1 ले रहे हैं हम। अब 20/3 - 3/4 करोगे 6 तो नहीं आने वाला, चेक करना है तो चेक कर लो। इधर आएगा 12, आपका एलसीएम आएगा 12, यहाँ पे आएगा 80 - 9, दैट इज 71/12 विच इज नॉट इक्वल टू 6। तो ये ऑप्शन गड़बड़ है। दूसरा वाला चेक करोगे तो यहाँ आ रहा है 20/3 - 2 × 1/3, दैट इज 2/3, एंड दैट इज 18/3 विच इज इक्वल टू 6। So this is your possible answer. Why I am saying possible answer, यही होगा, मैं अभी गारंटी क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि मुझे मालूम नहीं कि और जगह पे 6 आएगा कि नहीं। अगर किसी और जगह पे भी 6 आएगा तो वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अभी मैं फॉर द टाइम बीइंग लेट अस से दिस इज अ पॉसिबिलिटी, दिस कुड बी द आंसर। बट इन दिस केस यू विल रियलाइज कि अगर 20/3 में से 2n/3 माइनस करके 6 आ रहा है, तो 20/3 में से कुछ और माइनस करके 6 नहीं आ सकता ना। कैन वी से दैट? ये भी हमारी स्मार्टनेस है कि ये दोनों चेक करना है कि नहीं करना है। मैं कह रहा हूँ कि अगर 8 - 3 करके 5 आता है, तो 8 - कुछ और करके 5 नहीं आ सकता ना। अगर 8 - 3 करके 5 आ रहा है तो 8 - समथिंग एल्स विल नेवर गिव यू 5। अगर ये क्वेश्चन मार्क की जगह मैं 3 की जगह कुछ भी लिख दूं तो 5 तो नहीं आएगा ना। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर 20/3 में से 2n/3 माइनस करके 6 आया है, तो 20/3 में से कुछ और माइनस करके 6 आ ही नहीं सकता। तो यहाँ पक्का 6 नहीं आएगा और यहाँ पक्का 6 नहीं आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन भी गए। नाउ यू हैव द आंसर, ऑप्शन 2। ओके, अब ऐसा कुछ ऑप्शन होता कि आप बोलोगे कि किसी और ऑप्शन में भी अगर 6 आ जाता तो क्या करते,
तो ये तो ओरिजिनल क्वेश्चन कैट का मैंने उठाया है, द क्वेश्चन इज डन। बट सपोज इफ यू हैव द डाउट कि किसी और ऑप्शन में भी 6 आता तो क्या करते, तो फिर हम लेते लेट n equal to 2. If you take n equal to 2, then your sum would have been 6 plus 66, because when you take n equal to 2, you are taking 2 terms. तो 2 terms का मतलब है पहले 2 terms. पहले 2 terms का sum क्या आएगा, 6 plus 66, which is 72. अब जब जिन जिन ऑप्शन में 6 आ रहा था, सिर्फ वही ऑप्शन बचे हुए हैं, बाकी सब तो रूल्ड आउट हो गए। अब जिन जिन ऑप्शन में 6 आया था, n को 1 डाल के उन्हीं ऑप्शन में n को 2 डाल देंगे और फिर चेक कर लेंगे 72 कहाँ पे बन रहा है। That will be our answer. Now with long history of teaching and writing the exams myself, जितने भी एग्जाम्स मैंने लिखे हैं, जितने भी क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, इस अप्रोच में ज्यादा से ज्यादा एक वैल्यू या कभी रेयर केस में 2 वैल्यू लेके चेक करने की जरूरत पड़ती है। इन मोस्ट केसेस ओनली 1 वैल्यू इज इनफ टू फिल्टर द ऑप्शन की ऑप्शन में से कौन सा सही है। ऐसे रेयर केसेस ही देखे हैं जिसमें एक से ज्यादा वैल्यू भी लेनी पड़े चेक करने के लिए। और ये कोई क्वेश्चन स्पेसिफिक अप्रोच नहीं है, दिस इज एन अप्रोच विच कैन बी यूज्ड इन ऑल सच प्रॉब्लम्स वेयर क्वेश्चन में कुछ वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे वेरिएबल n है और आंसर ऑप्शन में भी सेम वेरिएबल्स हैं। क्वेश्चन में ये वेरिएबल लिखा है n टर्म्स तक और ऑप्शन में भी वही n है, तो उसको स्टैंडर्ड तरीका जो होगा सॉल्व करने का वो यूज करने की जरूरत ही नहीं है। आप वेरिएबल की जगह कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ले लो, उसको सॉल्व कर लो और वही न्यूमेरिकल वैल्यू ऑप्शन में डाल करके चेक कर लो कि सेम वैल्यू कहाँ पे आ रहा है। दैट्स ऑल, योर क्वेश्चन इज डन। ओके, ये सब अप्रोचेज हैं। There are a lot of such approaches that we learn in the classes. So in this session we are learning a few of them. Fine. Okay, let's look at this question. थोड़ा एक ज्योमेट्री करते हैं। Some recall of formulas. Area of circle होता है पाई r स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इस साइड का स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड एज हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। Now when we are dealing with geometry, then geometry में कुछ स्किल्स जो चेक की जाती हैं वो चेक की जाती हैं कि आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स कितनी अच्छी हैं, बिकॉज ज्योमेट्री में जनरली यू विल हैव सम फिगर्स और डायग्राम्स, then it is checked कि how good is your observation skill, how good is your sense of symmetry, how good is your sense of orientation of different types of figures. So those things are also important, खास करके अगर आप किसी क्रिएटिव रोल में हैं, तो मार्केटिंग के रोल में है या कोई भी ऐसे क्रिएटिव फील्ड में है, तो your observation skills and your sense of symmetry, all those things are very important. Observation skill is a general thing which is important for everybody, but figure के terms में observation skill और sense of symmetry, all those things are important, खास करके किसी creative job में। जैसे एक दो चीजें आप by your sense of symmetry समझ सकते हो, वो ये है, and that's not very difficult to understand. ये जो पॉइंट होगा जहां सर्कल टच कर रहा है बाहर वाले स्क्वायर के साइड्स को, those points are mid points of the sides of the square. Then you can also say ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस कर्व्ड लाइन का एग्जैक्ट मिड में होगा, ये जो पॉइंट है वो इस कर्व्ड लाइन के एग्जैक्ट मिड में होगा। This all we can understand by our sense of symmetry. You can also understand कि ये जो कॉर्नर वाला एरिया है, इसका एरिया, and just put टिक, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये चारों का एरिया इक्वल होगा। उसी तरह हम ये भी बोल सकते हैं कि ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया और ये एरिया, ये चारों भी इक्वल होगा। ओके, तो एक तरीका फाइंड करने का ये है कि हम बोल लेते हैं सपोज दिस एरिया इज एरिया नंबर ए
एंड दिस एरिया इज एरिया नंबर बी। एरिया नंबर ए और एरिया नंबर बी निकाल के जोड़ दें तो ये रेड कलर का शेडेड पोर्शन जो उसका एरिया आ जाएगा। अब एरिया नंबर ए कैसे निकालेंगे हम? एरिया नंबर ए निकालने के लिए विल डू आउटर स्क्वायर माइनस सर्कल का एरिया डिवाइडेड बाय 4। आउटर स्क्वायर माइनस सर्कल करोगे तो चारों कॉर्नर का एरिया आएगा, मुझे एक ही कॉर्नर चाहिए तो डिवाइड बाय 4। उसी तरह एरिया जो बी लेवल किया है हमने उसका एरिया निकालने के लिए हम बोलेंगे सर्कल का एरिया माइनस इनर स्क्वायर का एरिया एंड दैट आल्सो डिवाइड बाय 4। तो उससे ये पार्ट आ जाएगा। तो इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट्स नॉट डिफिकल्ट कि अप्रोच क्या होगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बाहर वाले स्क्वायर में से सर्कल मारे माइनस करेंगे तो चार कॉर्नर का एरिया आएगा, एक ही कॉर्नर चाहिए तो डिवाइड बाय 31 पॉइंट समथिंग आएगा सर, 31 पॉइंट समथिंग ऑप्शन रहता 31 पॉइंट समथिंग नहीं आएगा, एग्जैक्टली 32 आएगा। हाँ हो सकता है ऑप्शन। पाई वाला जो टर्म है ना वो कैंसिल हो जाएगा, तो पाई की वैल्यू डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पाई वाला टर्म कैंसिल हो जाता है। बट मेरा पॉइंट ये है कि ऐसे करोगे तो ऐसे टाइम लगेगा, मतलब ऐसे कर सकते हैं, नाउ वी अंडरस्टूड व्हाट टू डू, ऐसे कर लेंगे, पाई वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, इसलिए पाई की वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका आंसर 32 आ जाएगा कैलकुलेट करके। बट इसको करने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा इफ आई डू द अदर वे राउंड। तो दूसरा तरीका क्या है कि अगर मैं थोड़ा सा सोचूं, मैं फिगर को थोड़ा ओरिएंटेशन इसकी चेंज कर देता हूं, और इसके लिए आपको विजुअलाइज करना है। क्या एग्जाम में आपके पास ये चीज करने की फैसिलिटी नहीं होगी, मैं अभी ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो मेरे पास फैसिलिटी है, मैं आपको करके दिखा दूंगा, बट आपको बेसिकली विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज क्या करना है कि जो सर्कल है और सर्कल के अंदर वाला जो स्क्वायर है, बाहर वाला नहीं, सर्कल के अंदर वाला, इन दोनों फिगर को एक ही साथ रोटेट करना है। किधर? एंटी क्लॉकवाइज। कितना डिग्री? 45 डिग्री। सो द सर्कल and the inner square, both of them have to be rotated by 45 degree anti-clockwise. So I'm just rotating, you just carefully look at that कि अगर मैं रोटेट करूंगा तो क्या होगा। तो सर्कल और अंदर वाला स्क्वायर में रोटेट कर रहा हूँ, बाहर वाले स्क्वायर को एज इट इज छोड़ देना है। 45 डिग्री रोटेट करेंगे तो यहाँ आके रुकेगा। ओके, let me show you again। 45 डिग्री रोटेट करेंगे तो यहाँ आके रुकेगा ऐसे। And now the area that you want to find is nothing but a triangle। अब ये दोनों रेड पार्ट एक साथ अलाइन होकर ट्रायंगल बन गया ना। ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देंगे। तो बाहर वाले स्क्वायर का साइड पूरा 16 है तो ये आधा होगा 8, ये भी आधा होगा 8। इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल, सो यू कैन इजीली यूज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर आप इसको बेस ले रहे हैं तो ये हाइट हो जाएगा, अगर आप इसको बेस ले रहे हैं तो ये हाइट हो जाएगा। तो बेस और हाइट दोनों ही 8 है, 2 4 जा 8 एंड 8 4 जा 32। तो जब जो काम ऐसे करते टाइम लगता, वही काम हम ऐसे कर सकते हैं, 15 सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइंडसेट चाहिए इन एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए कि व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, जब प्रिपेयर कर रहे हैं घर पे, जब प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया और सॉल्व हो गया, अच्छी बात है, लेकिन उस क्वेश्चन पे थोड़ा रिफ्लेक्ट करके आपको सोचना है कि इस क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं क्या, कोई बेहतर तरीका है इसको सॉल्व करने का, जिससे टाइम बच जाए, एफर्ट्स बच जाए, मेहनत बच जाए। तो ये माइंडसेट के साथ जब प्रिपेयर करेंगे तो विल लर्न द आर्ट ऑफ सॉल्विंग अ क्वेश्चन फास्ट, और विल लर्न द आर्ट ऑफ सॉल्विंग अ क्वेश्चन इन एन अल्टरनेट वे विच विल सेव आवर टाइम एंड एनर्जी। ओके, तो अल्टीमेटली वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। यही स्किल जब आप डेवलप कर लोगे तो इसका मतलब आप कम टाइम में ज्यादा काम अकॉम्प्लिश कर सकते हो। And that is why if you hear about the hefty packages of 25 lakhs per annum, 30 lakhs per annum और 35 lakhs per annum, तो वो कोई फ्री फंड में नहीं मिल रहा है, वो आपकी काबिलियत के लिए मिल रहा है। और आपकी काबिलियत क्या है कि एक गिवन टाइम लिमिट में आप जितना काम कर सकते हो, जो आप किसी और नॉर्मल स्टूडेंट से या नॉर्मल किसी वर्किंग प्रोफेशनल से 4 गुना ज़्यादा काम कर सकते हो, बिकॉज यू आर सो एफिशिएंट, या फटाफट काम निपटाते हो। दैट इज वाई यू आर पेड मोर, यू डिजर्व दैट मनी। तो कोई ऐसे फ्री में तो बांट नहीं रहा है, आपकी काबिलियत के लिए दे रहा है, वो आप काबिलियत अपने अंदर डेवलप करते हैं। ओके, नाउ लेट अस
quickly look at something related to reasoning also. When we talk about reasoning, this is a sample example on a reasoning question. Reasoning questions generally lengthy होते हैं because उन questions में जितनी भी information है उसके basis पे you will generally see there are 4 or 6 questions. Okay, 4 या 5 या 6 questions होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा lengthy होगा. You have to read the entire information and then make sense of the data and then try to answer the questions. Okay, so this is something solving like a mini case study, है ना. एक छोटा सा केस स्टडी है जिसमें काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है. उस इन्फॉर्मेशन को यूज करके यूटिलाइज करके हमें ये 4 प्रॉब्लम सॉल्व करना है जो नीचे लिखे हुए हैं. तो लॉजिकल रीजनिंग सॉल्व करने का तरीका क्या है या अप्रोच क्या है? दैट सिंस अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन विल बी थ्रोन एट यू, यू हैव टू ऑर्गेनाइज द इन्फॉर्मेशन नीटली. तो एक और इन्फॉर्मेशन को पहले ढंग से ऑर्गेनाइज करेंगे, उसके बाद डिफरेंट पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन को वी कनेक्ट, जिसको बोलते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स. क्योंकि नॉर्मली आपकी इन्फॉर्मेशन जो है हैफजार्ड मैनर में दी होगी, तो आपको इन्फॉर्मेशन को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना है, उसको अच्छे ढंग से एक रिप्रेजेंट कर लेना है ताकि रीडेबिलिटी आसान हो इन्फॉर्मेशन की. अभी तो सेंटेंसेस में लिखे हुए हैं, हम इसको एक अच्छे ढंग से फॉर्मेट में अगर ऑर्गेनाइज कर लें अपनी इन्फॉर्मेशन को, तो रीड करना आसान होगा इन्फॉर्मेशन को. And once I do that, once I organize my information, then I will connect different pieces of information together, and then I will make sense of कि finally जो information है वो मुझे क्या logical conclusion दे रही है. Based on that, I can derive my answers. Okay. So logical reasoning solve करने का approach ये है: organize the information, connect different pieces of information, and do the analysis part, so that you are able to derive the answers. Basically, these are the 3 steps: organizing, then connecting the dots, and then analyzing afterwards to see what meaningful data you can derive. Fine. इसको एक बार करके देखते हैं, आप एक बार पढ़ लो इसको. बाय एंड लार्ज इन्फॉर्मेशन ये है कि 6 बच्चे हैं स्कूल के, उनके नाम लिखे हुए हैं, और 6 अलग अलग फ्रूट्स के नाम लिखे हुए हैं, 6 अलग अलग कलर्स के नाम लिखे हुए हैं. सो हर बच्चा एक पर्टिकुलर फ्रूट पसंद करता है और एक पर्टिकुलर कलर पसंद करता है. तो जो भी इंफॉर्मेशन दी है नीचे सारी, उसके बेसिस पे हमें ये पता करना है कि कौन से बच्चे को कौन सा फ्रूट पसंद है और कौन सा कलर पसंद है. सो इट्स काइंड ऑफ, यू कैन से मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन. यू हैव टू मैच द किड विद द करेक्ट फ्रूट एंड विद द करेक्ट कलर. इसको इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करने के लिए हम एक टेबल बना लेंगे ऐसा, और टेबल में 3 कॉलम्स किस लिए बनाए हैं? एक कॉलम बन जाएगा आपका नेम ऑफ द किड के लिए, बच्चे का नाम. दूसरा कॉलम फ्रूट के लिए, कौन सा फ्रूट पसंद करता है, और तीसरा कॉलम कलर के लिए, कौन सा कलर पसंद करता है. बच्चों के नाम ऑलरेडी मालूम है, तो बच्चों के नाम एक कॉलम पहले लिख दो. उसके बाद फिर देखेंगे कि कौन सा बच्चा कौन सा फ्रूट लाइक करता है और कौन सा कलर लाइक करता है. सो वी हैव सैम. यू कैन जस्ट यूज द इनिशियल्स ऑफ देयर वर्ड. सैम की जगह एस लिख सकते हो, चलेगा. बीनू. देन यू हैव रिन्नी, यू हैव टीना, पारुल, अंशु. नहीं, अंशु नहीं, आशु. ये सारे लोग हैं. अब देखो आगे क्या कह रहे हैं. ये पार्ट समझ में आ गया क्या करना है. सैम डज नॉट लाइक व्हाइट कलर, तो सैम के रो में कलर में व्हाइट लिख के कट कर दो. सैम को व्हाइट कलर पसंद नहीं है, वहां लिख के कट कर दो, ताकि मुझे बार बार ये सेंटेंस पढ़ने की जरूरत ना पड़े. यही टेबल में देख सकता हूँ सारा डेटा में. बट ही लाइक्स बनाना, तो फ्रूट में उसको बनाना पसंद है. बनाना में सर्कल कर देता हूँ क्योंकि ये फिक्स हो गया कि फ्रूट में उसको बनाना पसंद है. द किड हु लाइक्स ब्लैक लाइक्स एप्पल बट इट इज नाइदर रिनी नॉर पारुल. तो जो पर्सन ब्लैक पसंद करता है वो एप्पल भी पसंद करता है, लेकिन अभी फिलहाल मालूम नहीं है वो कौन है. मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, ब्लैक के साथ एप्पल आएगा. जहाँ पे कलर ब्लैक आएगा वहीं पे
फ्रूट में एप्पल आएगा। थोड़ा उल्टा करके लिख देता हूँ क्योंकि फ्रूट पहले लिखना है, कलर बाद में लिखना है। तो जहाँ पे ब्लैक आएगा उसी के साथ फ्रूट में एप्पल आएगा, लेकिन अभी कहाँ पे आएगा ये मालूम नहीं है। बट इट डेफिनेटली सेज द किड हू लाइक्स ब्लैक लाइक्स एप्पल बट इट इज नाइदर रिन्नी नॉर पारुल। तो ये रिन्नी और पारुल के साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मतलब रिन्नी के केस में यहाँ एप्पल नहीं होगा और यहाँ पे कलर में ब्लैक नहीं होगा। सिमिलरली पारुल के केस में यहाँ एप्पल नहीं होगा, यहाँ कलर में ब्लैक नहीं होगा। ओके, दिस इंफॉर्मेशन इज डन, दिस इंफॉर्मेशन इज डन। आशु लाइक्स रेड, आशु को रेड कलर पसंद है, कलर के कॉलम में लिखना है आशु लाइक्स रेड, रेड। बट ही लाइक्स नाइदर ग्रेप्स नॉर ऑरेंजेस। तो आशु को ना तो ग्रेप्स पसंद है ना ऑरेंजेस पसंद है। द किड हू लाइक्स पाइनएप्पल, द किड हू लाइक्स पाइनएप्पल लाइक्स ग्रीन। तो जिसको पाइनएप्पल पसंद है उसी को कलर में ग्रीन पसंद है, लेकिन ये कहाँ पे लिखना है अभी मालूम नहीं, तो इसे ये साइड में लिख दिया। ये इन्फॉर्मेशन कुछ साइड में भी लिख रहा हूँ। द किड हू लाइक्स पाइनएप्पल लाइक्स ग्रीन कलर बट इट इज नॉट बीनू। वो बीनू नहीं है। इसका मतलब बीनू के केस में यहाँ पाइनएप्पल नहीं आएगा और यहाँ पे ग्रीन नहीं आएगा। और आगे क्या लिखा है, इट इज नॉट बीनू हु लाइक्स ब्लू कलर बट नॉट ग्रेप्स। स्टैंडर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में किसी नाम के आगे कॉमा डाल के अगर हु लिखते हो तो वो हु रेफर करता है इस पर्सन को, कॉमा से जस्ट पहले जिसका नाम है। तो बीनू के बाद कॉमा डाल के हु लिखा है तो ये हु बीनू के लिए लिखा है। तो बीनू के लिए लिखा है हु लाइक्स ब्लू कलर बट नॉट ग्रेप्स। तो बीनू को ब्लू कलर पसंद है, तो बीनू के केस में कलर में आ गया ब्लू, लेकिन उसको ग्रेप्स पसंद नहीं है, तो यहाँ ग्रेप्स लिख के भी कट कर देते हैं। एंड रिन्नी डजंट लाइक व्हाइट कलर, तो रिन्नी के केस में यहाँ कलर व्हाइट नहीं होगा। ये जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो सारी हमने पढ़ ली। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने इस टेबल में ऑर्गेनाइज कर ली है। अब द नेक्स्ट स्टेप इज एनालिसिस ऑफ ऑल दिस इन्फॉर्मेशन एंड देन कनेक्टिंग द डॉट्स, या यूं कह लो पहले कनेक्टिंग द डॉट्स एंड देन विल एनालाइज की आंसर कैसे फाइंड करना। नाउ लेट्स कनेक्ट द डॉट्स, देखें कहाँ पे क्या चीज आता है नहीं आता है। कलर में देखोगे तो ब्लू कलर ऑलरेडी यूज हो चुका है, रेड यूज हो चुका है, यहाँ पे कोई कलर अभी तक दिख नहीं रहा है। ब्लैक देखोगे तो कुछ जगहों पे कट लगा हुआ है ना, ब्लैक यहाँ पे आ नहीं सकता, यहाँ पे आ नहीं सकता। अब सोचो ब्लैक कहाँ कहाँ आ सकता है पॉसिबली। ब्लैक अगर यहाँ पे डालोगे, जस्ट राइटिंग इट हियर, अगर मैं ब्लैक यहाँ पे डालूंगा तो ब्लैक के साथ इसके बगल में लेफ्ट में एप्पल डालना पड़ेगा। तो वो तो डाल नहीं सकते ना, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी बनाना है। तो सैम को तो बनाना पसंद है, एप्पल किसी और को पसंद होगा। तो अगर यहाँ ब्लैक लिखेंगे तो यहाँ एप्पल लिखना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस विच वी कांट डू। यहाँ एप्पल नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ ऑलरेडी बनाना है। तो ब्लैक और एप्पल यहाँ तो आएगा नहीं। अब यहाँ पे ऑलरेडी ब्लू है, यहाँ पे ब्लैक आ नहीं सकता क्योंकि कट लगा हुआ है, यहाँ पे ब्लैक आ नहीं सकता क्योंकि कट लगा हुआ है, यहाँ तो ऑलरेडी रेड है। ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग द ब्लैक कलर इज दिस प्लेस, और कहीं आ ही नहीं सकता। ब्लैक यहाँ पे आएगा तो इसके बगल में एप्पल यहाँ पे आएगा। ब्लैक इज हियर देन एप्पल इज हियर। ये इंफॉर्मेशन भी यूज कर ली हमने। ठीक है, यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ ब्लैक और एप्पल नहीं आएगा। ना यू थिंक अबाउट कि कलर में आप देखोगे तो कहीं कहीं पे व्हाइट नहीं है। देखो यहाँ पे व्हाइट नहीं है, यहाँ पे व्हाइट नहीं है। वेयर डू वी हैव व्हाइट? व्हाइट कहीं ना कहीं तो आएगा ना। यहाँ व्हाइट आ नहीं सकता, यहाँ व्हाइट आ नहीं सकता, तो व्हाइट के लिए तो एक ही जगह बचती है ये वाली, व्हाइट मस्ट कम हियर। एंड देन वी विल फिगर आउट ग्रीन कहाँ पे आएगा। तो ग्रीन के साथ पाइनएप्पल आना चाहिए, तो ग्रीन यहाँ आ नहीं सकता। अगर यहाँ ग्रीन लिखोगे तो यहाँ पाइनएप्पल लिखना पड़ेगा, लिख नहीं सकते क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी बनाना है। तो ग्रीन पाइनएप्पल यहाँ तो आ नहीं सकता, तो ग्रीन पाइनएप्पल शुड कम हियर। एक ही जगह बचता है फिर, ग्रीन हियर, पाइनएप्पल हियर। दिस पार्ट इज ऑल्सो डन। अब देखो कलर में बच गया है कौन सा कलर, एक ही कलर बच गया है जो कि है पिंक। पिंक यूज नहीं किया था अभी तक हमने, तो पिंक कलर यहाँ पे आ जाएगा। दिस मस्ट बी पिंक कलर, क्योंकि पिंक के लिए एक ही जगह खाली है कलर वाले कॉलम में।
और फ्रूट्स वाले कॉलम में देखोगे तो यू कांट हैव ग्रेप्स हियर, राइट? ग्रेप्स पे कट लगा हुआ है, यू कांट हैव ग्रेप्स हियर, राइट? ग्रेप्स पे कट लगा हुआ है, तो ग्रेप्स के लिए सिर्फ यही जगह बचती है, तो ग्रेप्स मस्ट कम हियर। अब आपके पास बच गए हैं ऑरेंजेस और बच गया मैंगो। उसमें से ऑरेंजेस यहाँ आ नहीं सकता क्योंकि कट लगा हुआ है ऑरेंजेस पे, तो ऑरेंजेस कहाँ आएगा? ऑरेंजेस यहीं पे आएगा। और फिर जो जगह खाली बच गई है वो किसके लिए बची है? मैंगो के लिए। एक फ्रूट मैंगो भी है, तो द लास्ट प्लेस शुड बी मैंगो। अब आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई, एक एक डेटा मैच हो गया। सैम कौन सा कलर, कौन सा फ्रूट पसंद करता है, कौन सा कलर पसंद करता है, एंड रेस्ट ऑफ द किड्स। नाउ यू कैन आंसर द क्वेश्चन। तो आपकी केस स्टडी सॉल्व हो गई। अब जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगे। प्रॉब्लम क्या क्या है? हु लाइक्स मैंगो? देख लेते हैं मैंगो कौन लाइक करता है। मैंगो कौन लाइक करता है? मैंगो लाइक करता है आशु। हु लाइक्स ग्रीन कलर? ग्रीन किसको पसंद है? रिन्नी को पसंद है। व्हाट कलर डज सैम लाइक? सैम को कौन सा कलर पसंद है? पिंक कलर पसंद है। हु लाइक्स एप्पल? एप्पल किसको पसंद है? टीना को पसंद है। Okay, so this is how we approach a reasoning problem. Okay, okay, so we'll wind up the session here. एक घंटा से थोड़ा ज़्यादा ही टाइम ले लिया हमने. So I hope you learned some things, and when you prepare for such exams, keep in mind these things that you learned in today's session, and then you'll be able to do a good preparation. Fine. All right then. Thank you so much from my side. In case you have any query, you can ask. Thank you so much, sir, for introducing us to this webinar. Now proceeding further, it's time to take up questions. I would like to invite Vansh to proceed with the question answer session. I request you all to please stay calm and let the previous question complete before raising another question ahead. Thank you so much, Anshika, for maintaining the decorum of the webinar till now. Before I proceed with the Q&A round, I'd like to request all the participants to switch on their videos for a quick photo session. Everybody, please switch on your cameras. Quickly, everyone, please turn on your camera. We will have a virtual group photo that way. You can smile as well, say cheese, so that we have nice smiling photographs for later. All participants as well as organizers, you're requested to please turn on your camera. Yeah, I think that's all we can make do with this. Please proceed, Vansh. Thank you, everybody. I'm sure everyone must be eager to know the answer to all their questions. So without any delay, let's proceed towards the questions. So the first question for you is it easy to crack the aptitude test of top institutes with just self-study? I would say answer is yes and no both.
सेल्फ स्टडी में होता क्या है that it is very difficult to maintain that kind of discipline that you need for the preparation. If you have joined some place where you are having some guidance and you have a structured approach towards preparation, that is always a big help. क्योंकि थोड़ा सा पुश होता है कि आपको पढ़ना है इतना या टॉपिक खत्म हो गया है तो उसके एक्सरसाइजेस सॉल्व करने हैं. जब हम घर पे अपने आप कर रहे होते हैं so kind of we become lazy. So if somebody is super disciplined and he or she can manage this with self study and look at different videos here or there and then do the preparation, वो एक बहुत strong commitment और discipline चाहिए. जिनके अंदर है वो कर सकते हैं, but I'll still say to be on the safer side, join some place where you will get some guidance and that will always help. Thank you, sir, for answering the question. Moving on to the next one. How can we manage our time so that we can accomplish our syllabus timely? That depends on you. Depends on you in the sense that आपको टाइम मैनेजमेंट का स्किल जो है वो अभी से सीखना चाहिए, because that is going to be I'll tell you with my personal experience and the experiences of a lot of people once they get into the corporate world or once they get into the B school, that सबसे जो वैल्यूएबल कमोडिटी होगी आपकी लाइफ में वो टाइम होगा गोइंग फॉरवर्ड. तो टाइम मैनेज करना अगर आप जितनी जल्दी सीख जाएंगे उतना जल्दी आपकी लाइफ के लिए अच्छा है, बिकॉज अनलेस यू लर्न टू मैनेज योर टाइम योर लाइफ कैन गो हेवायर. आपका पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ जो है वो बैलेंस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपकी जिंदगी में. लर्न टू मैनेज योर टाइम एंड स्टार्ट नाउ. तो अपने ऊपर आप बहुत सारे काम ले रहे हैं, जैसे आप कॉलेज की पढ़ाई भी कर रहे हैं, MBA एंट्रेंस की तैयारी भी कर रहे हैं, देन आप एक रूटीन बनाइए और रूटीन बना के उसको मेटिकुलसली फॉलो करने का ट्राई करिए. रूटीन बनाया कि मेरा वीकली शेड्यूल क्या है, सो मेक अ वीकली प्लानर. ओके, डेली प्लानिंग जो है थोड़ा इधर उधर हो जाता है, सो आइडियल स्ट्रैटेजी इज मेक अ वीकली प्लान कि इस वीक में मुझे ये काम करने हैं, एंड देन स्टिक टू द प्लान एंड ट्राई टू सी कि उस प्लान को आपने कितना जस्टिफाई किया. नेक्स्ट वीक में जो भी कम ज्यादा हुआ होगा उसको रीबैलेंस करके एंड देन मेक अनदर प्लान. तो ये आपको अल्टीमेटली बी स्कूल में घुसने के बाद ये करना ही पड़ेगा और कॉर्पोरेट लाइफ में तो बिल्कुल करना पड़ेगा. तो क्यों ना आप अभी से सीख लिए प्लान करना, आपके लिए आपकी जिंदगी प्रिपरेशन भी आसान हो जाएगी और इन जनरल यू विल फील मोर ऑर्गेनाइज्ड. काफी बार हम अपने लेजीनेस में ना वी फील क्वाइट डिसऑर्गेनाइज्ड, पता नहीं क्या चल रहा है, ये काम भी नहीं हुआ वो काम भी नहीं हुआ, बस हम सोचते रह जाते हैं कि इतने सारे काम करने हैं, एक्चुअली होता कुछ नहीं है क्योंकि वी फेल टू प्लान. सो मेक अ वीकली प्लानर फॉर द शेड्यूल एंड देन स्टिक टू इट. डिसिप्लिन फॉलो करना है कि उसको मेंटेन करना है. अगर आप रूटीन बना के भूल जाएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं. Thank you, sir, for answering the question so brilliantly. Moving on to the next one. On which subject do we have to focus the most and on which subject do we have to focus the least? Depends on your strength. Suppose somebody is good at mathematics or somebody is good at quantitative aptitude, maybe he can focus less time on quantitative aptitude and he can focus more time on the other areas, which is logical reasoning हो गया, DI हो गया या English हो गया. तो ये आपके स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है. कुछ लोग नेचुरली जैसे मैथ्स में अच्छे होते हैं, कुछ लोग नेचुरली इंग्लिश में बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि उनकी रीडिंग जो हैबिट है वो बहुत अच्छी होती है एंड दे कैन इजीली फिगर आउट कि करेक्ट आंसर क्या होगा. वो RC बहुत फटाफट जल्दी से पढ़ लेते हैं, समझ भी लेते हैं. सम पीपल आर मोर कंफर्टेबल इन इंग्लिश एरिया, तो मे बी दे विल स्पेंड लेस टाइम ऑन दैट. तो ये अब पर्सनल आपकी जो पोटेंशियल है उसके बेसिस पे यू हैव टू डिसाइड फॉर योरसेल्फ वेयर विल यू गिव मोर टाइम, वेयर विल यू गिव लेस टाइम. Otherwise, in general, if you are good at everything or you are not good at everything, then you have to devote equal time to all the areas because there is something known as sectional cutoff. तो अलग अलग सेक्शन होते हैं कैट में, और सेक्शनल कट ऑफ का मतलब ये है कि यू नीड टू शो लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस इन ऑल द सेक्शंस. सो इट इज नॉट लाइक दैट कि किसी सेक्शन पे आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और बाकी दो सेक्शन पे बहुत खराब परफॉर्म किया, then it will hamper your chances of getting calls from the best of the B schools because they will look at your sectional cutoff also. So ideal strategy is devote equal time to all the areas and based on your personal potential कि आप किसी फील्ड में अगर ज्यादा बेहतर हैं तो उस पर थोड़ा कम टाइम देके बाकी एरियाज पे ज्यादा टाइम देंगे. Sure, sir. Got it.
So the next question is how to solve reasoning based questions in the fastest way, the way you did. यही तरीका है, यू ऑर्गेनाइज द इन्फॉर्मेशन एंड दिस रिक्वायर्स अ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस. मतलब आप अगर पहली बार कर रहे हैं तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, बट वंस यू आर इन द हैबिट एंड वंस यू हैव इनफ प्रैक्टिस, यू विल बिकम मोर कंफर्टेबल विद इट. सो आइडिया वही है, ऑर्गेनाइज योर इन्फॉर्मेशन, then connect different pieces of information together and then derive the meaningful information, what meaningful data जो उससे derive की जा सकती है. तो स्ट्रैटेजी यही है, बट यही स्ट्रैटेजी अगर आप प्रैक्टिस बहुत करेंगे तो आप बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएंगे, कंफर्टेबल हो जाएंगे, है ना. इट इज लाइक ड्राइविंग अ कार चलाने में कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं. हमको पता है कि एक्सीलेटर, क्लच, ब्रेक, पीछे मिरर देखना होता है, ये सब छोटी मोटी चीजें हैं. बट आप नया चलाना सीखते हैं तो उतना कंफर्टेबली नहीं चलाते हैं, रिलैक्स होके नहीं चलाते हैं. बट आप 6 महीने प्रैक्टिस कर लेंगे तो बड़े आराम से चलाते हैं. फिर इट्स द सेम थिंग विद रीजनिंग आल्सो. In fact, it's the same thing with this entire preparation. The more you practice, the more good you become at solving problems. That's actually a really great example, sir. So the last question is, what extra efforts one can do to crack CAT if they aren't from maths background? I'll say start with your basics in the sense कि if you feel, कुछ लोगों को ना क्वांट का फोबिया होता है या यूँ कह लो मैथ्स का फोबिया होता है, स्कूल से ही होता है. वो पहले से ही घबराते हैं, यार स्कूल में इतना मैथ्स अच्छा नहीं था तो अभी यहाँ क्या हम कर लेंगे, या हमारा यहाँ पे कुछ नहीं होगा. तो ऐसा कुछ नहीं सोचना है. जैसे आपने आज के सेशन में देखा, यू लुक्ड एट द एग्जांपल्स ना, कि हम किसी क्वेश्चन में मैथमेटिक्स जो तरीका है वो तरीका ना लगा के हम कुछ और अल्टरनेटिव तरीके से उसको कर रहे हैं. तो अगर आपका मैथ्स वीक भी था स्कूल में तो यू डोंट नीड टू वरी अ लॉट अबाउट दैट, कि यू कैन स्टिल मैनेज, है ना. जरूरी नहीं, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स एंड लॉजिक. जैसे मैंने बोला मैथ्स और स्किल का कॉम्बिनेशन है, तो स्किल भी तो एक इम्पोर्टेंट एरिया है ना. मैथ्स का नॉलेज तो बेसिक है, बट फिर भी अगर किसी को लगता है कि मैथ्स उनका उतना अच्छा नहीं था बैक इन स्कूल, सो यू कैन स्टार्ट विथ द बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स. सो फॉर दैट यू कैन पिक अप योर मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक्स 7th 8th 9th 10th, ये 4 क्लासेस की आप उठा ले, उसके बेसिक्स एक बार रिवाइज कर लें. मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरी बुक सॉल्व करनी है, वो जरूरी नहीं है. जैसे आप हमारे पास अगर टाइम में आएंगे तो हम लोग सब कुछ बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं. सो वी एज्यूम कि मैथ्स जो आपने पढ़ा था वो आप भूल चुके होंगे. नॉर्मली अगर किसी ने 10th के बाद मैथ्स नहीं पढ़ा है तो वो भूल ही चुका होगा. तो हम एज्यूम करते हैं कि 10th के बाद आपने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रखा है, एंड देयरफॉर वी स्टार्ट विद द बेसिक्स ओनली. बट इट इज ऑलवेज अ गुड थिंग दैट आप खुद से कुछ होमवर्क करके अगर क्लास में आए, क्योंकि आप होमवर्क करके आते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आता है. और ये भी एक ऐसी आदत है जो आपको अभी से डाल लेनी चाहिए, क्योंकि बी स्कूल में आपको हमेशा होमवर्क करके जाना होगा क्लास में. यू विल हैव टू स्टडी द एंटायर चैप्टर फर्स्ट बिफोर एंटरिंग द क्लास. क्लास में जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा आपको खुद से पहले पढ़ के जाना है, क्योंकि क्लास में तो केस स्टडी डिस्कस होगा, क्लास में थ्योरी बहुत कम डिस्कस होगा. प्रोफेसर विल एज्यूम कि आप थ्योरी पढ़ के आए हो पहले से. तो अपना होमवर्क रेडी रखना ये इंपॉर्टेंट है, अभी से सीखोगे तो अच्छा रहेगा. तो आप थोड़ा बहुत 7th 8th 9th 10th की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक वो एक बार just go through the basics. You don't have to solve the entire booklet. If you read the theory part and look at the solved examples, that will be a good enough refresher on what you studied in mathematics back in school. उतना काफी होगा. बाकी हम लोग क्लास में तो करते ही सब कुछ डिस्कस. Thank you, sir. This must have helped all the students. Now, if anybody has any more questions besides the one already asked, please raise your hands. Okay, Vansh, I think we will need to wind up now because I am already late for one of my class, which was at 5:15. I understand, sir. Sure. Thank you so much, sir, for answering all the questions with so much patience. I think we have completed all our questions. We are sharing a feedback form with all of you, and everybody is requested to fill the form. If anyone is left with their query, please mention it while filling up the feedback form. We'll surely revert to you. Now, I would like to request the faculty from Placement Cell, Sonal ma'am, to formally thank everyone. Thank you, Vansh.
Thank you, Mr. Nihar Kumar, for sparing time to guide these young students in their pursuit of MBA dreams. I'm sure they have few very interesting takeaways from your this very interactive talk, so much so that even a history professor like me enjoyed it. But remember, students, at the end, it is practice that makes a man perfect. So, and that's what Mr. Nihar Kumar said at the end. What you need to do is to practice. It's time to extend a formal vote of thanks to all those people who actually made this event a very successful one. Heartiest thanks to Mr. Nihar Kumar and the audience for being such a lovely, patient, and inquisitive students representing Shivaji College. Thank you so much. I would like to extend a deep sense of gratitude to the principal, Professor. Okay, thank you, everyone. So I'll take you. So it was great interacting with all the students here. So all the best for your future endeavors. Thank you so much. It was a really good session. Bye. Thank you, sir. Bye, everyone. Bye. Thanks. Bye, sir. Sonal, you can continue, like just Okay. to a close. So, extending a sense of gratitude towards the principal, Professor Shiv Kumar Sahdev, under whose patronage the placement cell has been working hard to ensure that the students get the right direction in pursuit of their career. Special mention to the convener, placement cell, Dr. Jayita Thakur, who has geared up the student and teachers team together and has given the direction to the students how to go about organizing events in future as well, including this one. And most importantly, I need to thank the student team, Thair, Vansh, Anshika, and the entire student team who have been a part of this event, making it a success. And last but not the least, I would like to thank all the faculty members who were behind this invisible force, as an invisible force behind this event. Thank you so much. Shall we end it? Yeah, please do. Thank you. It was a great session. Thanks, everyone.